Assalamu alaikum. Thank you so very much for very kind words, and it's a different feeling to listen to Surah Rahman, because Surah Rahman is it's not just my favorite, it's my go-to surah. When I'm not okay, when I'm scared, when my airplane is in turbulence form, when I actually am scared of this world, this is the surah I go to that. Thank you so much, sir. This is the best thing that could have happened today. So, what happens is diabetic foot. Unfortunately, मेरा ख्याल है corruption के बाद we are at number 1 diabetes को लेके, and diabetic foot, it's very common. Everybody of us are dealing with diabetic patients. All of us, we know that diabetes is there to stay. It's not going anywhere. It will be, if we do not step in right now, it is increasing. And we actually are a nation with almost 60% of the youth. And now what happens is that if we have this much prevalence of diabetes and diabetic foot with a higher amputation rate, we will be left with a nation which will not be productive as it should be, which is a big backlash. हम तो पहले ही माशाल्लाह से हैं, तो बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे. So foot problems, they are important cause of morbidity in the patients with diabetes. And not just morbidity, mortality. I'm sure many of you must have seen patients with sepsis and everything. It's not working. अब ठीक है. Okay. So patients have died with sepsis as well. So not mortality, morbidity, but mortality as well. So type 2 patients के अंदर, it's almost 34% of the patient might have lifetime risk of the foot ulcer. This is just to show you how bad is it, and I think we know more than this. We see the patients and we just know it's bad. What are the risk factors? Any person with previous foot ulceration is higher risk for the next ulcer, because previous foot ulceration हुई है तो कोई ना कोई पीछे reasons होंगी. Neuropathy, जिसमें आ रहा है loss of protective sensation. This I'll be discussing inshallah. Foot deformity. Why foot deformity? फुट डिफॉर्मिटी जब भी होगी, व्हाट हैपन्स इज कि प्रेशर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे. जो अल्लाह पाक ने नेचुरल प्रेशर पॉइंट्स रखे हैं वो चेंज हो जाएंगे, दूसरी जगह प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा जो कि अल्लाह मियाँ ने नहीं बनाया प्रेशर के लिए. It will lead to foot ulcers and amputation and gangrene and whatnot. And then vascular disease. All of us know we have issues with vessels when diabetes is concerned. When 939 कर्कश गाड़ी है. Okay, moving forward, this is what happens in diabetes. Just have a look. It's a little scary looking. मैंने इसको कलरफुल शक्ल तो है इसकी, but it's scary looking. So what happens is, I don't know इसका pointer चल रहा है. Pointer हो गया. So we have diabetic neuropathy first. मोटर न्यूरोपैथी हो जाए, सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाए, ऑटोनॉमिक हो जाए. whenever there is autonomic, एक तो AV शंटिंग हो जाएगी, दूसरी जो चीज़ होगी वो लॉस ऑफ स्वेटिंग हो जाएगी. सो दोनों चीज़ें होंगी. जब लॉस ऑफ स्वेटिंग हो गई, ड्राई फीट हो गए, इट विल एंड देन एवी शंटिंग की वजह से इस्कीमिया हो जाएगा, लीड टू अल्सरेशन. सेंसरी डैमेज हो जाएगा, प्रोप्रियोसेप्शन, पेन परसेप्शन नहीं होगी. पेशेंट, आई वंस सॉ अ पेशेंट जिसका जो एक नेल था, कील था, वो उसकी हील के अंदर फॉर मैनी डेज इन्फेक्ट हो चुका था, उसको नहीं पता था. पेन परसेप्शन ही नहीं है. दैट रिस्क. एबनॉर्मल फुट पोस्चर हो जाता है व्हेन देयर इज़ मोटर डैमेज, शार्को जॉइंट बन जाते हैं, एबनॉर्मल फुट होता है, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, एंड इट लीड्स टू अल्सरेशन. दिस इज़ न्यूरोपैथी. अपार्ट फ्रॉम न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ और क्या कर रहा होता है? माइक्रो सर्कुलेटरी डिजीज, सर्कुलेशन ख़राब कर देता है. तो जब सर्कुलेशन ख़राब हो गया, अगेन इस्कीमिया हो गया, अल्सरेशन, देन लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी हो जाती है. सो ऑल ऑफ दीज. उसके बाद अगर कोई कसर रह गई होती है तो दिस इज़ व्हाट वी डू टू आवर सेल्स, वी स्मोक, एंड देन हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, वो मैक्रोवैस्कुलर भी इस्कीमिया करता है. सो ऑल इन ऑल ये है कि आपका कोई पेशेंट, मैंने पहले भी कहीं पे बात की थी, इफ़ यू आर हैविंग अ डायबिटिक पेशेंट, ही शुड नॉट गो होम जूते उतारे बगैर इन योर क्लिनिक. जस्ट लुक एट द फीट, उसको नहीं पता चलेगा. और दूसरा, आपने उसको बता के भेजना है कि जनाब आपने रोज़ाना पाँव एग्ज़ामिन किए बगैर, जब आप इशा का वज़ू कर लिया आराम से, जो मेरा है, उसके बाद पाँव खुश करें, अच्छी तरह देखें अंदर से. इस तरह मेरा तो ये इशारा बन गया है कि पाँव अच्छी तरह देखें, ताकि उसको पता हो कि उसने टोज़ के बीच में भी देखना है. देन मॉइस्चराइज द फुट एंड देन गो टू स्लीप. खुश पाँव के साथ नहीं सोना. दिस इज़ द रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन.
लॉप्स क्या है? लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन। इसको कैसे चेक करना है? इट विल बी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इफ़ द पेशेंट हैज़ नो लॉप्स, रेस्ट अश्योर कि आपका पेशेंट ठीक है, वो फिर ठीक रहेगा। नो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, नो डिफॉर्मिटी, ओके है, उसको आपने सिर्फ एजुकेट कर देना है। अगर लॉप्स आ गया है, प्लस माइनस डिफॉर्मिटी होगी, स्टिल आपको स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस पेशेंट। जैसे ही प्रोटेक्टिव सेंसेशन अल्लाह पाक की दी हुई निकल गई ना, पेशेंट इज़ एट रिस्क। देन अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ भी आ गई, सो यू माइट हैव टू कंसिडर द वैस्कुलर कंसल्टेशन। जब नहीं थी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ तो आपने एवरी 3 to 6 months देखना था। अब जब आ गई तो एवरी 2 to 3 months आप पेशेंट को देखेंगे। और अगर पेशेंट का हिस्ट्री है अल्सर या एम्पुटेशन की, तो फिर एवरी 1 to 2 months। सो दिस इसमें है क्या कि आपने कितना फ्रीक्वेंटली पेशेंट को बुलाना है। जो वैस्कुलर सर्जरी है, याद रखिएगा, क्रॉनिक के अंदर वैस्कुलर सर्जरी का काम नहीं आएगा। वैस्कुलर सर्जरी आएगी जब एक्यूटली पेशेंट का वेसल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। सो व्हाट डू यू नीड टू आस्क द पेशेंट? आपने उससे पूछना है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज longer the diabetes, longer the complications, longer ischemia, longer microvascular, macrovascular compromise is there. Glycemic control, good glycemic control, less chance of all the complications. Presence of microvascular disease, अगर एक पेशेंट में आपके पास रेटिनोपैथी मौजूद है, यू नो के पेशेंट का फुट एट रिस्क है। अगर एक पेशेंट इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का है, ऑटोमेटिकली, एंड इट्स वाइस वर्सा एज वेल, अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है जिसको न्यूरोपैथी डेवलप हुई हुई है, इसका मतलब ये है कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के ऊपर है वो पेशेंट। हिस्ट्री ऑफ प्रायर फुट इंजरीज, लोअर लिम्ब बाईपास एम्पुटेशन, प्रेजेंस ऑफ क्लॉडिकेशन। प्रेजेंस ऑफ क्लॉडिकेशन कैसे पूछेंगे आप? ठंडा तत्ता महसूस होता है एब्सोल्युटली सर। सो पेशेंट आपको ना जो क्लासिक हिस्ट्री देता है वो ये देता है कि मैं कुछ देर चलता हूँ एंड आई हैव सिवियर पेन। इतनी पेन होती है कि मैं थकावट से नहीं बैठता, मैं पेन से बैठता हूँ, एंड आफ्टर सम टाइम पेन गोज अवे और मैं दोबारा चलना शुरू हो जाता हूँ। दिस इज़ बैड। क्लॉडिकेशन जब आ जाए ना तो इट्स बैड। नो, लेग्स लोअर लिम्ब क्लॉडिकेशन होती है। इसको एग्जामिनेशन है, इसको लेट्स टेक इट आगे। इंस्पेक्शन पे आपने क्या देखना है? एनी डिफॉर्मिटी, एनी फुट अल्सर, पेशेंट का फुट शेप कैसी है, एंड शार्को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन पीडल पल्सेस देखनी है, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन। दिस इज़ शार्को आर्थोपैथी। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने दूसरी वाली मेरी प्रेजेंटेशन लगा दी है, बट ओके, दिस इज़ शार्को आर्थोपैथी। अगर आप देखें तो इसमें जो मेन इशू आ रहा होता है ना, ये जो मीडियल आपके पास मिड फुट होता है ना, इसकी जो हमारे पास देयर इज़ एन आर्च, मीडियल आर्च होती है हर एक के पाँव की, वो मीडियल आर्च इज़ लॉस, और वो लॉस के बाद एक रॉकर बॉटम किस्म की शेप इसकी बन जाती है। तो इंस्टेड ऑफ दिस इट बिकम्स दिस। तो ये चीज़ जो कि नॉर्मली फुट को टच नहीं होती आर्च की वजह से, ये हर जगह टच होगी एंड इट विल लीड टू अल्सरेशन। तो प्रोमिनेंस आ जाती है, बोनी प्रोमिनेंस इसमें आ जाती है। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, देयर इज़ स्मॉल मसल वेस्टिंग, डिक्रीज सेंसेशन एंड मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट बेरिंग। दिस इज़ बेसिकली द रीज़न जिसकी वजह से फुट अल्सर्स हो जाते हैं। पीडल पल्सेस में क्लॉडिकेशन आपने देखनी है, एंड देन यू असेस द पीडल पल्सेस। ऑब्वियसली डॉर्सालिस पीडस देखेंगे, नहीं मिल रही, पोस्टीरियर टिपियल देखेंगे, नहीं मिल रही। अगर वो भी नहीं मिल रही, देन यू गो फॉर पॉप्लीटियल। आपको पेशेंट्स मिलेंगे जिनकी पॉप्लीटियल भी नहीं आ रही और वो चलते फिरते आपके पास आ गए हैं, एंड देन वो फेमरल पल्सेस उनकी मिलती हैं। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनके आप लोअर लिम्ब वैस्कुलर सर्जरी के पास भिजवा सकते हैं। इसके अलावा एक्यूटली में फ़र्क पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। Then we have ankle brachial index. I am sure all of you have, you actually know what ankle brachial index is, and I'll tell you what happens इसमें. So this is loss. जब आप loss of protective sensation करते हैं ना, तो ये है as simple as this. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसका नाम ऐसा फैंसी रख दिया हुआ है। So एक मोनोफिलामेंट आप लोगों के पास है ना, everybody should have this. Anybody who has even one diabetic patient in the clinic in the whole month, उसके पास ही मोनोफिलामेंट होना चाहिए। इट्स 10 ग्राम मोनोफिलामेंट, एंड दीज आर द ओनली साइड्स, यू नो, राइट के ऊपर ये 1 2 3, ये 1 2 एंड दिस वन। यहाँ पे आपने सिर्फ डॉर्सल कॉलम देखना है। देखना कैसे? ऐसे। पॉइंट इज कि जब आपके पास वो फिलामेंट है, सॉरी, वो जो फिलामेंट है, इट शुड बेंड,
It should bend in a C shape or a 90 degree or a certain degree for the patient to realize कि उसको feel हो रहा है या नहीं. अगर आप उसको सीधा डायरेक्ट लगाएंगे, you're not bending, इसका मतलब ये है कि आप उसको प्रॉपर प्रेशर नहीं दे रहे, बिकॉज दिस इज़ गिविंग प्रेशर. और इसका जो प्रेशर इंटेंडेड प्रेशर है वो तभी आएगा जब इसको आप फोल्ड करेंगे. दैट्स जस्ट वन थिंग. देन ट्यूनिंग फोक, डॉर्सल कॉलम देखने के लिए न्यूरोथीजियोमीटर. दिस इज़ अ गुड थिंग. जिसको इट्स जस्ट द सेम थिंग. बस आपने करना ही होता है कि आपके पास एक ऑटोमेटिक चीज़ है, यहाँ से वाइब्रेशंस आ रही होती हैं और फुट की वही जगह जो कि लॉब्स के ऊपर थी वहीं पे आप इसका ये प्रोब लगाते हैं और इसके यहाँ पे इंक्रीज़ करते रहते हैं 5, 10, 15. एक वो बंदा जो कि प्री डायबिटिक या डायबिटिक नहीं है वो तो 3, 4, 5 के ऊपर उसको वो वाइब्रेटरी सेंसेशन जो कि आप ट्यूनिंग फोक से कर रहे थे वो समझ आना शुरू हो जाएगी. जो डायबिटिक पेशेंट है उसको 16, 17 इस तरह पता चलना शुरू होती है कि अच्छा दिस इज़ समथिंग इज़ रॉन्ग. और जब 25 से ज़्यादा हो जाए ना, दिस मीन्स द न्यूरोपैथी हैज़ एक्चुअली एडवांस्ड. एडिशनल में आपने अल्सर देखना होता है. दिस इज़ एंकल ब्रेकियल इंडेक्स. सो व्हाट हैपन्स इन एंकल ब्रेकियल इंडेक्स इज़ कि आपने इट्स एंकल एंड ब्रेकियल दोनों का आपने ब्लड प्रेशर लेके विद डॉपलर, ये डॉपलर है, वही ब्लड प्रेशर का आपने लगाया हुआ है कफ एंकल पे, डॉपलर के साथ देख लिया जहाँ पे आपको जो भी वैल्यू आ रही. इसी तरह एंकल का देख लिया और ब्रेकियल का देख लिया, बाजू का देख लिया और उसका आपने रेशो निकाल लिया. 0.9 से अगर कम आ रहा है इसका मतलब है कि दिस इज़ इस्कीमिया. इसका मतलब ये है कि उसके वेसल्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड. दिस इज़ पीडोग्राफ. बड़े मज़े की चीज़ है पीडोग्राफ. वी हैड दिस इन सर्विसेज. तो क्या है, यू जस्ट वांट द पेशेंट टू स्टैंड ऑन दिस. तो पेशेंट खड़ा हो गया, उसके फुट का ये मैप बन गया. इसमें कुछ ग्रीन एरियाज़ हैं, कुछ येलो है, कुछ रेड है. सो मीनिंग ये है कि जो रेड एरियाज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है. सो अब ये फुट के वो एरियाज़ जो कि नॉर्मल एरियाज़ हैं, अगर तो ये नॉर्मल, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल एरिया, ठीक है, दिस इज़ ओके. यहाँ पे आप लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन चेक करते हैं ना. सो जब पीडोग्राफ के ऊपर रेड एरियाज़ आ रहे होते हैं और पेशेंट हाई रिस्क है फॉर फुट अल्सर से, तो आप करेंगे क्या, आप उसको कस्टमाइज्ड फुटवेयर दे सकते हैं जो कि वो वाला बैलेंस जो कि रेड में आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओवर होल ऑफ द फुट, जिसकी वजह से फिर वो अल्सर के प्रोन नहीं रहेगा. सो दिस इज़ पीडोग्राफ. न्यूरोपैथी. अच्छा, अब मैं न्यूरोपैथी पे थोड़ी देर बात करूँगी. सो न्यूरोपैथी क्या है, एक अग्रीड अपॉन इसकी डेफिनेशन है. इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स एंड और दोनों हो सकते हैं साइंस ऑफ पेरिफेरल नर्व डिसफंक्शन इन पीपल विद डायबिटीज़ आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉजेज. नो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास डायबिटिक पेशेंट आ रहा है, उसको न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं, डज नॉट मीन कि उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी है. ऑल्दो अकल ये कह रही है कि वही होनी है, बट द पॉइंट इज़ कि डायबिटिक न्यूरोपैथी को आप तब लेबल करते हैं जब बाकी कॉजेज़ आपने रूल आउट कर ली हो, चाहे आप हिस्ट्री पे रूल आउट करें. ये एक ढेर सारा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फ्लो चार्ट है जिसमें ये बताया है कि होती क्यों है नर्व डैमेज. वेसल वॉल, माइलिन प्रोटीन्स, एक्सोनल न्यूरोफिलामेंट डैमेज, कोलेजन डैमेज, एंटीऑक्सीडेंट्स डेफिशिएंसी हो जाती है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन. सो दिस सेलुलर लेवल के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है उसकी वजह से वी हैव इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, साइटोकाइंस एंड TNF अल्फा, डिक्रीज ब्लड फ्लो, एक्सोनल एट्रोफी, डीमाइलिनेशन. तो एक्सॉन भी जा रहा है, डीमाइलिनेशन भी जा रही है, एंड फाइनली नर्व. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि एट द एंड रिजल्ट हो जाता है नर्व फंक्शन डैमेज. पॉइंट इज नर्व विल नॉट बी बैक 100%, नो चांस. कुछ हद तक या तो आप उसकी प्रोग्रेशन स्टॉप कर सकते हैं, स्पेशली अगर नेगेटिव सिम्टम्स है ना. अगर तो पॉजिटिव सिम्टम है, पेशेंट को बर्निंग है, पेन है, इट विल बी कंट्रोल्ड. अगर नेगेटिव सिम्टम्स है ना, जो आपका पेशेंट कह रहा है मेरे पाँव सुन्न हो रहे हैं, दैट विल नॉट बी रिवर्स्ड. वो उसको आपने रियलिस्टिकली बताना है कि भाई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि कमाल हो जाएगा, नहीं. हाँ, जो जिसके पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, इट विल गेट बेटर. सो फॉर न्यूरोपैथीज वी हैव सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी जिसमें डिस्टल है, स्मॉल फाइबर है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी. देन वी हैव फोकल एंड एसिमेट्रिकल जिसमें क्रेनियल न्यूरोपैथीज हैं. वी वंस हैड अ पेशेंट जो सिर्फ 6 नर्व पैल्सी से साथ आया था. ये मोनोन्यूरोपैथी होती है. जो ट्रंकल न्यूरोपैथीज़ हैं, लिम्ब मोनोन्यूरोपैथीज़ हैं, जैसे कि सिर्फ हैंड ड्रॉप के साथ फुट ड्रॉप के साथ आ जाएगा पेशेंट. एंड देन प्रॉक्सिमल मोटर न्यूरोपैथी.
इसमें आती है एमायोट्रोफी, डायबिटिक एमायोट्रोफी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देन कॉम्बिनेशन पॉलीरेडिकुलोपैथी वगैरह आ जाता है। सो ये इस तरह है इसका थोड़ा सा। इफ़ देर इज़ लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी तो सेंसरी लॉस हो सकता है, पेन हो सकती है, टेंडन रिफ्लेक्सेस विल बी मार्केटली डिक्रीज्ड। ये आपके पास ये जो टिपिकल हम ग्लव्स एंड स्टॉकिंग कहते हैं, ये लार्ज फाइबर में आएगा। स्मॉल फाइबर्स में सेंसरी लॉस बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसमें थर्मल या एलोडाइनिया ज़रूर आएगा। लार्ज फाइबर में तो टच एंड वाइब्रेशन भी जाएगी। पेन इसमें ज़रूर होगी। टेंडन रिफ्लेक्सेस आर नॉट बैड, इसमें तो बिल्कुल ही डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये वो है जो हम मोस्टली देख रहे होते हैं। देर इज़ नो मोटर डेफिसिट, देर कैन बी मोटर डेफिसिट और कैन नॉट बी मोटर डेफिसिट। जो हमारे पास प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी है उसमें सेंसरी लॉस, पेन इज़ देयर, टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज एंड प्रॉक्सिमल मोटर डेफिसिट इज़ देयर। फॉर एक्यूट मोनोन्यूरोपैथी की सिंपल बात यह है कि जो नर्व इन्वॉल्व है उस नर्व की डेफिशिएंसी आ जाएगी। इसको आप जो 6 है 6 की आ जाएगी, 7 है 7 की आ जाएगी। सो द मोनोन्यूरोपैथी बड़ी स्पेसिफिक होती है। एंड देन देयर आर प्रेशर पाल्सीज, उसको हम छोड़ते हैं। सो जो हमारे पास डिस्टल सिमेट्रिकल है जिसकी अभी मैंने बात की है, उसमें जब एक्यूटली पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो वो आपको कहेगा बर्निंग डिस्कम्फर्ट इन फीट, हाइपरेस्थीसियास, हल्का सा टच करने से बहुत पेन होता है उसको, डीप एकिंग पेन, शार्प स्टैबिंग पेन। एंड इम्पॉर्टेंट इज़ के पेशेंट जो है, पेशेंट हैज़ एलोडाइनिया, पेशेंट हैज़ नॉर्मल मोटर इज़ नॉर्मल एंड रिड्यूस्ड एंकल रिफ्लेक्सेस। ये वो पेशेंट होते हैं क्योंकि एक्यूट प्रेजेंट कर रहे हैं तो एपिसोड ऑफ कीटोएसिडोसिस के बाद भी ये प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। सो दिस इज एक्यूट, ये आप कम देखेंगे। एलोडाइनिया क्या है? यही ज़्यादा पेन परसेप्शन, ये आप देखते हैं मोस्टली ये चीज़। क्रॉनिक सेंसरी न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन होता है, प्रीडोमिनेटली सेंसरी होता है, ऑटोनॉमिक कोरिलेट विद सेवेरिटी। जहाँ जब बहुत ज़्यादा आपको सेंसरी मिल रहा हो ऑटोनॉमिक ज़रूर देखना है, वो बल्कि आप लोग देखते ही होंगे, वो गया हुआ होता है। देन सिंगल स्टॉकिंग एंड ग्लव डिस्ट्रीब्यूशन, लेंथ डिपेंडेंट होता है एंड दे एडवांस सेंसेशन इम्पेयर्ड ऑफ, अच्छा वेज शेप होता है यूं करके, चेस्ट एंड एब्डोमेन, ये उसकी सेंसेशन एक वेज शेप में चली जाती है पेशेंट की इन वेरी एडवांस स्टेजेस। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी आपको कार्डियोवैस्कुलर में भी प्रेजेंट कर सकती है, जीआई में भी प्रेजेंट कर सकती है, जेनेटो यूरिनरी में भी प्रेजेंट कर सकती है। पेशेंट आपके पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ आते होंगे, चक्कर नहीं जा रहे हमारे, मैं लेट के उठता हूँ तो ये हो रहा है, रेस्टिंग टैकीकार्डिया रहता है, डिमिनिश हार्ट रेट रिस्पॉन्ड टू रेस्पिरेशन, आपको पता है जैसे ही आप रेस्पिरेशन के साथ आपकी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के साथ हार्ट रेट चेंज होती है, फिजियोलॉजी वाली बात, ये डिमिनिश हो जाती है। दैन वेगल डीनर्वेशन ऑफ हार्ट हो जाती है। सो वेगस जब डीनर्व हो रहा है तो रेस्टिंग पल्स ज़्यादा होगी क्योंकि वेगल इनहिबिटरी होती है, तो रेस्टिंग एंड लॉस ऑफ साइनस एरिथमिया हो गया। इसी वजह से हमारे पास पेनलेस और साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है। अगर मैंने किसी पेशेंट को डराना हो और मैंने उसे स्टैटिन कहना हो ना, ज़रूर लें, ये वो पॉइंट है जिससे मैं उसे डराती हूँ। जनाब बैठे बैठे हार्ट अटैक का तो पता ही नहीं चलेगा आपको। आई एम सॉरी बट आपको समटाइम्स पेशेंट को डराना पड़ जाता है। जब आप जीआई की बात करते हैं उसको बताना ज़रूरी है। पेशेंट वरना पूछते हैं इन ये जो आपने लिखी है ना, इनमें से शुगर वाली कौन सी है, बिकॉज उसके जो ये पूछ रहा है उसके माइंड में ये है कि जो ऊपर 2-3 शुगर वाली हैं वो मैं खरीद लूँगा, वो मैं खा लूँगा, बाकी बस ठीक है। तो वो मुझे फिर थोड़ा सा डराना पड़ता है कि भाई साइलेंट एमआई हो जाना। सो जीआई मोटिलिटी आपके पास आती है, इसोफेगस हो, स्टमक, गॉल ब्लैडर, एनीथिंग कैन बी इन्वॉल्व्ड। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग वेरी कॉमन। अर्ली सेटाइटी, आप उसे कहना 2 लुक में खाएंगे और आपका पेट भर जाएगा, वो कहेगा हाँ जी यही होता है मेरे साथ। देन पोस्ट प्रेंडियल ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। डायरिया भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ मोर कॉमन देन डायरिया एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे समेत अगर मैं देखूँ तो मेरे जहन में आता है कि अगर गैस्ट्रोपरीसिस चल रहा है ना पेशेंट को, जीआई मोटिलिटी, तो शायद डायरिया ज़्यादा होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कि कॉन्स्टिपेशन इज़ मोर कॉमन एंड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कैन आकर। Impaired bladder sensation, it is the first symptom of genitourinary dysfunction. ब्लैडर एटोनी हो सकता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के साथ या रिटेंशन के साथ पेशेंट आ सकता है। अब आपने ये देखना है कि ये डायबिटीज़ की वजह से है, ये प्रोस्टेट की वजह से अगर मेल पेशेंट है तो। देन इम्पोर्टेंस, दिस इज़ so important to ask from every patient. Unfortunately there is only 1 to 2% of the patient जो आपको ईडी का बताएंगे। जो मेल डॉक्टर्स हैं मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा डिस्कस कर सकते होंगे वे, और करते भी होंगे अगर फीमेल्स के पास डायबिटिक मेल पेशेंट है, इंक्लूडिंग मी। इट्स अ सोशल टैबू एंड उनको लगता है कि जनाब इफ़ आई हैव डेवलप्ड ईडी, मेरा पता नहीं सम हाउ वाई क्रोमोसोम हट के शायद एक्स लग गया होगा।
this is a perception which needs to be. So my point is कि if I find, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा longer duration का, और patient आपको सिर्फ ये कहते कमज़ोरी से वो आगे नहीं जाते हैं, they want you to बस understand कि कमज़ोरी है. So I take the initiative because at this stage of my life and at this stage of my career, if I am not asking, I am responsible for that. वरना मुझे आने ही नहीं चाहिए इस फील्ड में. अगर मुझे लग रहा है अल्लाह मैं कैसे पूछूं, फिर आप ना आए इस फील्ड के अंदर. यू हैव टू आस्क. एंड याद रखिए, मैं एक पॉइंट यहाँ पे, द ओवर द काउंटर ड्रग्स आर यूज्ड, मिसयूज्ड वेरी कॉमनली. जस्ट टेल योर पेशेंट दैट, हमारे पास तो अभी कितने केसेस भी हो रहे हैं कि कार्डियक असेसमेंट्स के बग़ैर, ETT के बग़ैर, डू नॉट टेक दोज ड्रग. एक तो पहले आपके पास डायबिटिक पेशेंट्स पड़े हैं, फिर आप इतना हाई सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन करने की कोशिश करें, पेशेंट विल एंड अप इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. सो जब भी आपने, और अगर कुछ नहीं ना तो रेफर द पेशेंट टू कार्डियोलॉजिस्ट एंड टेल द पेशेंट यू कैन जस्ट राइट टू स्टार्ट आफ्टर कार्डियोलॉजिस्ट फिटनेस. बिकॉज उसमें क्या है कि यू हैव सेव्ड योर सेल्फ लीगली एंड इन द आइज ऑफ अल्लाह मियां. आपने पेशेंट को बता दिया. इफ़ पेशेंट इज़ नॉट विलिंग टू गो टू कार्डियोलॉजिस्ट कैन, यू कैन नॉट फोर्स इट, लेकिन आपका फ़र्ज़ ज़रूर है उसे बताएं कि भाई इसके अलावा आपने यूज़ नहीं करनी. एंड आई पर्सनली राइट इट ऑन माई प्रिस्क्रिप्शंस. मेरी प्रिस्क्रिप्शंस पे लिखा होता है, बिकॉज मुझे भी पता होना चाहिए, पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि आई हैव टोल्ड दिस. अच्छा, डायबिटिक एमायोट्रॉफी के बारे में सिर्फ ये बताऊँगी, ये इतनी बड़ी लंबी स्लाइड. टाइप 2 के साथ होती है. मोस्टली पेशेंट एक्सट्रीम पेन के साथ होता है, जो कि थाई एरियाज़ में होती है, और उसका मोटर लॉस होता है. अगर आप देखेंगे तो पेशेंट का जो थाई मसल है उसका वॉल्यूम कम हो चुका होता है. इनका ये सेल्फ लिमिटिंग होती है. अच्छी बात ये है सेल्फ लिमिटिंग होती है, बट इट टेक्स 6 months और मोर. ऐसा पेशेंट अगर आपके हथे लग जाए, पुट द पेशेंट ऑन इंसुलिन. चाहे SGLT2 ले रहा है, चाहे GLP ले रहा है, चाहे वो जो मर्ज़ी दुनिया की चीज़ ले रहा है, बेहतरीन कंट्रोल्ड है, सब कुछ है. आपने पेशेंट को उतार के इंसुलिन पे ही डालना है, उसके बाद पेशेंट ठीक हो. इफ़ यू डू नॉट पुट द पेशेंट ऑन इंसुलिन, ही विल नॉट बी फाइन. मैनेजमेंट में क्या है, मेरा ख्याल है बिल्कुल ख़त्म होने वाली. मैनेजमेंट, इसका लॉजिक ये होता है कि मसल, इंसुलिन इज़ एनाबॉलिक. जहाँ पे आपकी it's anabolic na. So there is only one drug which is anabolic in diabetic profile, that is insulin. और जब मसल लॉस हो रहा है ना, इसका मतलब है मसल इज अंडर केक्सिया. एमायोट्रॉफी थाई में ही है. जो थाई की न्यूरोपैथी है उसका नाम एमायोट्रॉफी है. पेल्विक मसल एंड थाइस. अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको ओवरऑल बॉडी के केक्सिया भी मिल रहा है ना, जो कि वेट लॉस के साथ पेशेंट आ रहा है, बिकॉज वो टॉपिक नहीं है तो मैंने इसको डिस्कस है, तो भी आपने इंसुलिन ऐड करनी है. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ इनमें ऐड करनी है, ये तो अभी टॉपिक में है. सो आई एम टेलिंग यू, अगर बॉडी इज़ इन कैटाबॉलिक स्टेट, पेशेंट इज़ लूजिंग वेट, एसिडोसिस वगैरह, तो अगर आप सोचेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पेशेंट की रेस्पिरेशन कितनी है, क्या है. पुट ऑन इंसुलिन. जो सल्फोनाइल यूरिया है वो भी तो निकालते ही हैं इंसुलिन को वहाँ से पैंक्रियाज से. सर, सल्फोनाइल यूरिया विल नॉट एक्ट अनफॉर्चुनेटली. बेनिफिशियल फॉर दिस एट्रोफी. एमायोट्रॉफी नो सर, दैट हैज़ टू बी इंसुलिन. जो टेस्ट होता है HbA1c, उसका क्राइटेरिया से रिलेटेड हम नहीं उसको इंसुलिन टेक करेंगे. सी, उसमें ये है कि अगर तो आपके पास वो पेशेंट आ रहा है, अब ये बिल्कुल टॉपिक से हट के आ रहा है, अगर आपके पास एक पेशेंट HbA1c 13 के साथ आ रहा है, ब्लड शुगर फास्टिंग 300 के साथ आ रहा है, तो आपने उसको इंसुलिन पे ही डालना है. इज़ नो क्वेश्चन. अगर आपके पास पेशेंट डायबिटिक इमरजेंसी के साथ आ रहा है, आपने उसको इंसुलिन पर ही डालना है. अगर आपका पेशेंट कैटाबॉलिक स्टेट में आ रहा है, आपने उसको इंसुलिन पर ही डालना है. अगर आपका पेशेंट जेस्टेशनल एमेनोरिया के साथ आ रहा है, आपने उसको इंसुलिन पर ही डालना है. ठीक है. उसके अलावा अगर आप HbA1c ऑलरेडी ऑन ओरल है, पेशेंट आपका 2-3 ड्रग्स ले रहा है और आप उसे इंजेक्टेबल ऐड करना चाह रहे हैं, देन फर्स्ट लाइन जो आपकी जो चॉइस होगी दैट इज़ नॉट इंसुलिन. अगर ये वाले फैक्टर्स नहीं है देन दैट इज़ GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग. बिल्कुल. बताती हूँ. अगर ये वाली कंडीशन है तो सबसे पहले पेशेंट की कंप्लाइंस देखें तो ड्रग एंड डाइट.
400 वैसे नहीं, आप 3 ओरल ड्रग्स दे रहे हो और 400 पेशेंट की आ रही हो रिपोर्ट, आंखें बंद करके पेशेंट इज़ नॉट कंप्लाइंट टू डाइट। दूसरी बात यही मैं आपको बता रही थी, आई वॉज इन मिडल ऑफ द सेंटेंस, वो यही थी कि ऐसे पेशेंट्स को अगर आपने इंजेक्टेबल डालना है तो जो फर्स्ट चॉइस है दैट इज़ GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग इंजेक्टेबल, दैट इज़ नॉट इंसुलिन, अगर ये कुछ नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग, देन यू हैव टू पुट इट ऑन इंसुलिन पे, तो आप मजबूर है ना सर। लीरा हो जाए, सीमा हो जाए, सीमाग्लूटाइड हो जाए, लीराग्लूटाइड हैज़ टू बी GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग, फर्स्ट injectable of choice if patient is not on all these criteria is GLP receptor analog. Sure. बोले, पूछे नमनेस का क्या लेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और आपने कुछ डिवाइसेस भी आपने शेयर किए हैं। मैं ये कह रही थी उसमें पूछना चाहती नमनेस के लिए हम फिर लाइफ टाइम होम्योपैथिक बार भी उसको रखेंगे? No, I did not say and I will not say this कि आप उसको लाइफ टाइम एथिक वाल में रखें। मशीनरी that was for diagnosis। जो पीडोग्राफ था, बायोथीजोमीटर था, ये जो मशीनरी है ये डायग्नोसिस के लिए है, दैट्स नॉट फॉर ट्रीटमेंट ना। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? जस्ट ब्लड। ये इसके अलावा जो TCAs और SSRIs और SNRIs और ये जो चीज़ें हैं दे विल नॉट हेल्प नेगेटिव सिम्टम्स। इसके अंदर आपके पास सिम्प्टोमेटिक तो ये प्रीगैबलिन वगैरह से पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स। मिकोबालामीन का क्या रोल आता है इसमें? साइलोकोबालामीन या मिकोबालामीन? बिल्कुल है इसका रोल। मेरा ख्याल है अगर ये वही प्रेजेंटेशन हुई जो मैंने अभी वो एडिट की है तो इसमें मौजूद होगा, अगर नहीं हुई तो मैं ज़बानी कलामी बता दूंगी। ओके, सो सिम्टोमेटिक में सबसे पहले तो ये कि आप रूल आउट करें, जो मैंने पहले बात की थी, मेलिग्नेंट डिजीज़ है, मेटाबॉलिक, टॉक्सिक, इन्फेक्टिव, आइट्रोजेनिक, कोई भी हो सकती है। देन आपने पेशेंट को ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, असेस द लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल प्रोफाइल एंड ऑप्टिमल स्टेबल कंट्रोल। जिन सिम्टम्स की आप बात कर रही हैं ना, उनको अगर कोई चीज़ हॉल्ट करेगी, इम्प्रूव नहीं करेगी, हॉल्ट करेगी, दैट इज़ ऑप्टिमाइज स्टेबल ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। अच्छा जी, ये एल्गो है, एस का एल्गो है। इसमें यह है कि आप देखें कि अगर तो आपने पता कर लिया कि पेन जो है वो DPN की वजह से है, अगर तो है देन यू कैन गो विद एंटी कन्वल्सेंट्स, प्रीगैबलिन, गैबलिन, SNRIs, duloxetine and venlafaxine, TCAs, amitriptyline, very commonly used nortriptyline as well, कैप्सिसन पैचेस में भी आते हैं, कैप्सिसन क्रीम भी आती है, लोशंस भी आते हैं। एक्सरसाइज अगर परसिस्ट करता है देन यू कंबाइन दीज एंड यू अवॉइड ओपियोइड्स का इनमें कोई काम नहीं। कैप्सिसिन दिया किसी को? कैप्सिसिन नो, डॉक्टर साहब की देता है जलता रहता है। अच्छा, जलता रहता है, बिल्कुल, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है इसमें ना। मैं आपको बताऊँ, मैंने जो इसमें देखा है वो देसी कैप्सिसिन है। आपको शायद तारामीरा का तेल हम या जवां का तेल कहते हैं, उसमें आयोडेक्स एक होती थी, आयोडेक्स, वो मिला के पेशेंट को पाँव पे लगवा देते हैं। अगर आप कैप्सिसिन नहीं लेना तो देसी वाला का। बेसिकली हमने क्या होता है कि नर्व्स को हमने बार बार स्टिमुलेट करना होता है, वो रिपीटेड स्टिमुलेशन की वजह से कुछ ना कुछ रीगेन कर जाती है अपने फंक्शन, एंड इट टेक्स एटलीस्ट 8 months, एटलीस्ट 8 months, बिकॉज नर्व रिपेयर एट द रेट ऑफ 2 centimeter per year। सो 8 months पेशेंट को पता चलने में लग जाते हैं, तो वो हम तारामीरा का तेल में आयोडेक्स मिला के लगवा सकते हैं पेशेंट को। मैंने यही बताया है कि देसी है। यार मेरी बात सुनो, लिविंग इन पाकिस्तान अगर किसी फीमेल को तारामीरा और जवां का तेल नहीं तो मुझे हैरत है, मतलब सीरियसली बड़ी ज्यादती हो गई फिर आपके बालों के साथ। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, सीरियसली, ये तो कमाल ही हो गया यार। बाहर तो नहीं रहे हो सारी उम्र? नहीं, ओके। सो वी हैव प्रीगैबलिन जिसकी डोज आप 300 to 600 मिलीग्राम पर डे जा सकते हो। गैबापेंटिन 900 to 3600 मिलीग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोजेज तक जा सकते हैं। मैक्सिमम आपने कितनी दी हुई है? ये टॉलरेट ही नहीं करते। 300, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकी। ये प्रीगैबलिन, मैं मोस्टली डुलॉक्सिटिन और प्रीगैबलिन के ऊपर रहती पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछें। दोनों FDA रिकमेंडेड है। डुलॉक्सिटिन जो है मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है ऑनेस्टली, उसके थोड़ा इट हैज़ अ लिटिल लेस सिडेशन एंड देन यू कैन ऑलवेज कंबाइन। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड, अगर इफ़ यू रियली वांट पेशेंट जिसको सिम्टोमेटिकली रिलीफ आए ना और ही इज़ इन अ बैड स्टेट ऑफ न्यूरोपैथी, शुरू की नहीं,
बैड चीज़, एड मेथिकोवॉल, प्रीगैबलिन एंड डोलॉक्सिटिन इन कॉम्बिनेशन। मेथिकोवॉल मैं पर्सनली क्या करती हूँ, फॉर 5 to 10 days इंजेक्टेबल में देती हूँ। वी हैव रिसर्च आर्टिकल्स जो कि इंजेक्टेबल्स को कंपेयर किया हुआ है, सो वी हैव रिसर्च आर्टिकल्स ऑन दिस, ऑल्दो दिस इज़ नॉट रिटन इन द गाइडलाइंस, वी हैव रिसर्च आर्टिकल्स एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या डोज देनी है? सिंगल इंजेक्शन 500 वाला, Alternative- 5 to ऑल्टरनेट पे दें या डेली पे दें, अच्छा। इट डजेंट अफेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्गर इसका स्टोरेज, तो आई पर्सनली गिव फॉर 5 to 10 days। अच्छा। मैडम इसका ब्लड टेस्ट नहीं करवाना चाहिए विटामिन बी? जितने का ब्लड टेस्ट होगा उतना पेशेंट को लग जाएगा, एंड इट विल नॉट हार्म द Water पेशेंट, soluble इट विल नॉट extreme हार्म ये हार्म water soluble है। कई पेशेंट्स के बाहर में उनका 2000 तक पहुंच रहा होगा। कोई बात नहीं, वो निकल जाएगा, अच्छा, बट वो अगर- पेशेंट लगवाता ही ना रे। अगर हम 5 days recommend to 10 करें- days आर इनफ। अगर 2000 आ गया तो फिर बंद करना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर हम रिकमेंड करें B1, B6, B12, so that is not more beneficial as compared to देयर giving इज एन single- आर्टिकल, वन सिंगल आर्टिकल दैट टेल्स यू, और उसकी है अप टू 6 month उन्होंने दिया हुआ है, इफ आई एम, जिसके इनिशियल 4 weeks इंजेक्टेबल पे रहा है पेशेंट, एंड उसके बाद ओरल पे रहा है पेशेंट। Injectable alternative is how much it should be given. इट कैन बी गिवन डेली, इट कैन बी गिवन ऑल्टरनेट, सिंगल इंजेक्शन 500। सो उसमें ये है कि दैट पेपर टेल्स यू कि अगर उन्होंने कंपेयर ही B12 और बी कॉम्बिनेशन को किया है, न्यूरोबान वाले। एग्जैक्टली, सो वो वाला इज अ सिंगल पेपर आई कुड फाइंड जो कि इन दोनों को कंपेयर कर रहा है। Your own उनको experience. बता देना। माई ओन एक्सपीरियंस, आई पर्सनली गिव B12। नहीं, उसकी क्या थी, क्या कंक्लूजन थी जो उन्होंने कंपेयर? they said कि the combination is better, बेटर? they said combination, हम personally I give nerve B12। ओरल हम यूजुअली नर्व रीजनरेशन उन्होंने नहीं देखी उस पेपर में, नर्व रीजनरेशन के जो हमारे पास टेस्ट है ना, वो उन्होंने नहीं अप्लाई किए हुए, उन्होंने सिंपल, माइलिन शीट को रीजनरेट करते हैं और उससे फिर उन्होंने जो उनका जो प्राइमरी वो उन्होंने जो आउटकम देखने, प्राइमरी आउटकम जो उन्होंने देखा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन पेशेंट्स कंप्लेंट, सिम्टोमेटिक। दैट इज पेशेंट्स कंप्लेंट को उन्होंने देखा है कि दे आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जो हमारे पास प्रॉपर प्राइमरी सेकेंडरी आउटकम्स के अंदर जो माइलिन शीट की NCS और वो EMG वाले चक्कर है, वो नहीं हुआ हुआ उसके ऊपर। सो मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं आई गो विद B12, आई गो विद B12, आई नो वो उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वगैरह लिखा हुआ है, इसका क्या? डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन का रोल है, लेकिन इट इज़ नॉट FDA अप्रूव, तो इसलिए मैंने फिर इसको किया है। सेंट्रल एक्टिंग पेन आप, सो सेंट्रली एक्टिंग काम करेगी, इट हैज़ अ सेंट्रली एक्टिंग पेन सप्रेशन एक्शन एक्चुअली। मेथिकोवॉल के रोल में दिस वाज, ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान ये वाला क्यूरियस वाला है इसमें ना, तो फिर ये है कि एस्ट्रोमाइनोफिन भी और जो ऑरफेनेडिन सिट्रेट है, ये कॉम्बिनेशन जो इन द फॉर्म ऑफ न्यूबिरॉल जिसमें आता है, न्यूबिरॉल तो वो भी सेंट्रली एक्टिंग जो एनर्जेटिक, बिल्कुल centrally acting यूज हो सकते हैं इसमें, न्यूरोपैथी। एस्ट्रोमेथॉर्फिन या मॉर्फिन जिस तरह भी है। इसीलिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन FDA अप्रूव नहीं है, कोई बहुत हाई फाई काम नहीं करेगा। आप देखें पेशेंट को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉम्बिनेशन दे जिसमें ऑरफेनेडिन सिट्रेट और एस्ट्रोमाइनोफिन वाला, तो फिर इसमें क्या कुछ पेशेंट्स कोई में रिजल्ट नहीं होती है मिलता। approve। नहीं, देखें बिल्कुल कोई न्यूरोपैथिक पेन हैज़ अ डिफरेंट, न्यूरोपैथिक पेन आपके पास सेरोटोनिन के साथ चल रहा होता है, जो दूसरा पेन होता है वो इसके साथ नहीं, ये वाला ये सेरोटोनिन एंड जो हमारे पास है गाबा, इसके थ्रू एक्ट नहीं कर रहा होता पेन रिसेप्टर के ऊपर, जो नॉसिसेप्शंस वाले हैं। ये वाले जो न्यूरोपैथिक पेन है, ये इन टू के थ्रू काम कर रही होती है। इनके ऊपर फिर काम भी वही ड्रग करेगी जो वाया सेरोटोनिन और गाबा एक्ट करती है। नॉसिसेप्शन वाली फिर इस पे काम नहीं करेगी। ट्रेमाडोल वगैरह नहीं यूज नो, मैंने अभी लिखा था कि ओपियोइड शुड नॉट बी गिवन, डोंट गिव ओपियोइड टू द पेशेंट, इट विल नॉट अफेक्ट, क्योंकि नॉसिसेप्शन पाथवे इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, न्यूरोपैथिक पाथवे इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। इनके जो न्यूरो मीडिएटर्स हैं दे आर डिफरेंट, फिर ट्राइसाइक्लिक जो है वो बिल्कुल काम करता है, दे आर वेरी बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज इन द लिस्ट ना। ट्राइसाइक्लिक भी जो है वो भी नॉरएपिनेफ्रिन को और जो है सेरोटोनिन को सेरोटोनिन दोनों को जो है वो रिड्यूस करती है। बिल्कुल करती है। तो जैसे ही वो सेरोटोनिन को कर रही है, उसने वो पाथवे ले लिया, तो जैसे ही वो उस पाथवे को उसने एंटर किया, इट विल अफेक्ट। आई विल टेल यू समथिंग, इट अफेक्ट्स दैट and then it affects diabetes distress as well, because it has an antidepressant effect as well, so it potentiates both, इसलिए so ये हमारे पास अभी ये हमारा ये रिसेंटली क्यूरियस के अंदर पब्लिश हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन ऑन क्लिनिकल आउटकम्स इन पेशेंट विद डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये मेटा एनालिसिस है RCTs का। सो मेटा एनालिसिस ऑफ RCTs जो है वो स्टडीज़ के सबसे ऊपर वाले लेवल पे मोस्टली आ रहा होता है।
इसका कंक्लूजन क्या है, इन्होंने ये कहा करंट मेटा एनालिसिस फाउंड दैट B12 कैन इम्प्रूव न्यूरोपैथिक सिम्टम्स एंड रिड्यूस पेन, ये आप वाली अभी बात होने लगी, इन पेशेंट विद डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाउएवर the current study did not report any significant difference between patients who received vitamin B12 and placebo in terms of HDL, LDL and total cholesterol. So cholesterol के ऊपर काम नहीं, सॉरी एक और स्टडी थी, मुझे लगा मैंने वो ऐड की भी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो वो मार्कर्स थे ऑफ माइलिनेशन एंड डीमाइलिनेशन somehow they were comparable in placebo and B12, लेकिन जो symptomatic improvement है that has a clearly significant p value. अच्छा जी, ये मीकोजन इनका वो है, देन दे हैव लेकोसामाइड। लेकोसामाइड का तो आपने लिखा था No. नहीं फायदा। लेकोसामाइड का फ़ायदा नहीं, दिस इज़ वन स्टडी। अब ये एक स्टडी है, लेकोसामाइड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द गाइडलाइंस, ओके, बट दिस इज़ वन ओनली स्टडी जो कि आपको ये बता रही है कि प्री गैबलिन के अगेंस्ट इट हैज़ इम्प्रूव्ड द फिज़िकल हेल्थ एंड सोशल फंक्शनिंग एंड फटीग, एंड none of this is associated with how neuropathy presents. It improves the overall health and overall well-being of the patient. Yes, so it does. See, दूसरी बात ये होती है कि जब लेकोसामाइड, for example, it has a role, you never know after 3 years it is included in the guide. आपको पता ज़रूर होना चाहिए क्या ये गाइडलाइन में इंक्लूडेड है, नो। देनी कैसे है, स्टार्टिंग डोज 50 mg ट्वाइस, आफ्टर 1 वीक 100 mg ट्वाइस डेली, और मैक्सिमम डोज 400। इफ समबडी वांट्स टू, इफ़ यू हैव इंट्रैक्टेबल न्यूरोपैथी, फिर आप जो ये वाली चीज़ें होती हैं जिनमें पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं, ये सिर्फ तब आती हैं जब आपके पास गाइडेड चीज़ें आर नॉट वर्किंग, देन यू गिव एन एडिशनल थिंग इन दैट। अच्छा, ये बात B12, B9, B6, B12 ये न्यूरोनल वायबिलिटी के लिए विटामिन की लिमिटेशन कितनी होती है, हम कितनी देर तक दे सकते हैं? किसको, जी न्यूरोपैथिक जो पेन आप बता रहे हैं, विटामिन B12 और लिकोसामाइड, ओरल दे रहे हो ना, डू नॉट गिव इट मोर देन 3 months, एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर भी फर्क ना पड़े। एक्चुअली आप उससे फ़र्क नहीं डाल रहे हो, आप फ़र्क डाल रहे हो प्री गैबलिन, गैबलिन एंड डुलोक्सिटीन से, वो सिर्फ असिस्ट कर रहा है। पेशेंट के साइन सिम्टम्स वैसे ही रहे कंटिन्यूअस, आफ्टर मेडिसिन जो है रिजॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा रिकवर सी आफ्टर मेडिसिन, देखो अगर आप जो हमारे पास प्री गैबलिन, गैबलिन, डुलोक्सिटीन में से अगर आप कुछ देते हो तो दैट स्टेज विद द पेशेंट टिल डायबिटीज स्टे विद द पेशेंट, यू अंडरस्टैंड। जो मेथिकोबॉल वाली बात है, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म कोर्स एंड देन आप उसको हटा लेते हो, ओके। सो जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ विद दोज ड्रग्स, दे विल अफेक्ट स्लोली बट दे विल नॉट अफेक्ट अप टू 100% एट ऑल, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे इफेक्ट when blood sugar level is controlled. You cannot expect कि आपकी BSR का HbA1c 12 पे जा रहा है और आप फुल डोज पे डोलॉक्सिटिन और प्रीगैबलिन दे रहे हो और मेथिकोबॉल दिए जा रहे हो, ये मीकोजन और जो भी किसी फॉर्म में भी है, तो सब लिंगुअल है, सो दिए जा रहे हो, पेशेंट कंट्रोल नहीं होगा कंट्रोल। माई पॉइंट इज जी, मैं जो कहती हूँ वो ये, मैं ये कहती हूँ पेशेंट को, मैं ये कहती हूँ कि जनाब कोई आग लगी हुई है कहीं पे और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आग बुझा दूँ और मैं पानी डाल रही हूँ, आप वहाँ से आके मट्टी का तेल डाल देते हैं। जब तक मट्टी का तेल ख़त्म नहीं होगा, मैं जितना मर्ज़ी पानी डालूँ आग ने नहीं बुझना। सो जब तक ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगी, आप जो मर्ज़ी दे लें पेशेंट को, लेकोसामाइड भी देते हैं, उसने कंट्रोल नहीं होना। बाद मरीज आते हैं कि ग्लूकोज टॉक्सिसिटी होती है, उसमें वो कहते हैं नहीं हम चला नहीं जा सकते, हमसे हम चला नहीं जा सकते, पैरालिसिस हो जाता है उसको, वो ग्लूकोज न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है। ग्लूको न्यूरोपैथी है नहीं, उसमें यह है एक्यूट कंडीशन में। बाद पेशेंट मैंने देखे हैं कि अगर उनकी जो शुगर लेवल है मोर देन 300 है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो बड़ी टांगें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, हम तो चल ही नहीं सकते। तो आई मीन टू से दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लूकोज न्यूरोटॉक्सिसिटी और ग्लूकोज मायोटॉक्सिसिटी। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट? रीज़न ऑफ दैट इज़ दैट पेशेंट इज़ अनएबल टू यूटिलाइज दैट ग्लूकोज। जब बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन, दैट इज़ अ कैटाबॉलिक स्टेट, तो वो
लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो अच्छा रही है। अच्छा, राइट राइट। जब बंदा भागता है बड़ी देर, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन वो नहीं चल उसकी वजह सकता से, है। राइट, हाँ। जो बॉडी के बायोएनर्जेटिक्स हैं, दे हैव शिफ्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन फ्रॉम ग्लूकोज यूटिलाइजेशन टू प्रोडक्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। राइट। उसकी एक्यूमुलेशन पेशेंट को नहीं काम करने देती है। इट्स जस्ट लाइक कि मैराथन भाग रहे एक वक्त के बाद नहीं, क्योंकि ग्लूकोज उसका यूज़ नहीं प्रोडक्ट जो हो है टॉक्सिक मैटर जो है वो एग्जैक्टली। सो वो जो उसका यूज़ होने के लिए आपको कुछ चाहिए वो इंसुलिन है। ये वो पेशेंट होते हैं जिनको आपको इंसुलिन कुछ देर के लिए देनी पड़ती है। अच्छा जी, सो मैनेजमेंट में मैकेनिकल कंट्रोल, मेटाबॉलिक BSR कंट्रोल, माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल अगर आपको फुट अल्सर्स मिल रहे हैं, जो वैस्कुलर मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। वैस्कुलर मैनेजमेंट एक्यूट फेज में होगी, या अगर पेशेंट की आपको पॉप्लिटियल भी नहीं मिल रही, आपको गैंग्रीन नज़र आ रहा है, कोई ऐसी बात है। मेटाबॉलिक, ब्लड शुगर लेवल, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग। जो मैकेनिकल कंट्रोल है ये उनमें आ जाता है, जैसे शार्को फुट होते हैं या डिफॉर्म फुट होते हैं, जिनके पीडोग्राफ में रेड एरियाज आपको ढेर सारे मिल रहे होते हैं, तो आप उनको फिटेड शूज़ दे देते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल कोई अल्सर है, इन्फेक्शन है, वॉट एवर इज़, वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, वो दैट विल कॉज लॉस ऑफ मेटाबॉलिक कंट्रोल एंड वर्सनिंग ऑफ दिस थिंग। एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट में स्टेंटिंग का क्या रोल है? एक्यूट में डेफिनेटली रोल है, एक्यूट ऑक्लूजन में डेफिनेटली रोल है। अगर क्रॉनिक है, क्रॉनिक में स्टेंटिंग एंटीप्लेटलेट जैसा स्लोस्टाजील है, सिलोस्टाजोल वो है, इस तरह एंटीप्लेटलेट क्लोपिडोग्रिल या उसके एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑल दीज आर एंटीप्लेटलेट। बिल्कुल। तो इसका जो रोल है, आपने ये क्लाडिकेशन अभी जो बात की थी इसको, तो इफ द पेशेंट इज गिवन दिस ड्रग, डू यू थिंक इट विल बी बेनिफिशियल Not इन दैट much. केस? नॉट मच। स्टैटिन तो इज अ मस्ट, स्टैटिन मस्ट है। अगर सब पेशेंट के ना कि diabetics मैंने 100%, अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है, उसकी एज 40 to 75 के बीच में है, तो आपने मॉडरेट डोज स्टैटिन उसको अन्यवा दे देनी है। देखना ही नहीं है उसका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है क्या, आपने स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद वो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल लेके आएगा। अगर वो मैंने उस पर फॉल कर रहा है हायर डोज के ऊपर, हायर डोज का मतलब है वो डोज जो 50% रिड्यूस कर, तो आप उसको दे दें। अगर उसकी वो परफेक्टली ज़बरदस्त आ रही है, LDL 70 आ रहा है, स्टिल ही विल टेक स्टैटिन, दिस इज़ रिकमेंडेड। तो आपने, हाँ, एस्पिरिन ये है, देयर इज़ नो रोल ऑफ एस्पिरिन इन प्राइमरी प्रिवेंशन। आई सॉ अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन देखी है जिसमें ये है कि आप एक दिन लोप्रिन लें, एक दिन स्टैटिन लें। लोप्रिन का कोई काम नहीं है, स्टैटिन अमृत धारा है, आपने डायबिटिक पेशेंट को स्टैटिन देना ही देना है। स्टैटिन की है उन पेशेंट्स में जो टॉलरेट नहीं करते, उनकी कुछ स्टडीज हुई हैं, अल्टरनेट डेज पे दी गई है। 2 ड्रग्स ऐसे, अगर लेट से पेशेंट है उसको माइल्जिया या मायोपैथी सेकेंडरी टू स्टैटिन डेवलप हो जाती है, तो आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, रोसुवास्टैटिन ऑन ऑल्टरनेट डेज या प्रावास्टैटिन डेली। अच्छा, इसमें कुछ बाकी सारी निकल जाती हैं फिर। हाइपरकोलेस्टेरोलिया होता है, एक हाइपर पेशेंट होता है हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, एक होते हैं हाइपर कोलेस्टेरोलिया आइसोलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल होता अब है। उसमें अगर हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है जी, जी। तो उसमें हम उसको जो है फिब्रेट जो है वो रिकमेंड करेंगे, जबकि हाइपर कोलेस्टेरोलिया के लिए पेशेंट के लिए हम अजीटिमैब जो है ना उसको रिकमेंड करेंगे। तो स्टैटिन अगर First line दोनों में statin होंगे है। तो स्टैटिन देंगे, या अगर आइसोलेटेड अगर आइसोलेटेड फेमिलियल भी हो ना हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, तो तब फर्स्ट statin ड्रग देंगे। इज स्टैटिन। और अगर वो 500 क्रॉस कर चुका है तो देन यू ऐड स्टैटिन विद अगर सिंपल ट्राइग्लिसरीडीमिया है, लेवल बता रहे हो ना, अगर सिंपल ट्राइग्लिसराइडीमिया है 500 से कम है, सो फर्स्ट लाइन इज स्टैटिन। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा वो, फिर भी देने स्टैटिन ही देने। स्टैटिन ही देना। 500 क्रॉस कर गया है तो आप फिर कॉम्बिनेशन में देंगे, क्योंकि फिर शायद जो हाई डोज स्टैटिन है वो भी उसको 500 से नीचे ना ला सके। और अगर सिर्फ ट्राइग्लिसराइड किसी पेशेंट का ज़्यादा आ रहा है ना और वो फेमिलियल नहीं है, तो जो पहली चीज़ है वो ये पूछिएगा कि आपने फास्टिंग करवाया है। ये रिपोर्ट होती है ना जिसमें सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, ये मोस्टली वो पेशेंट होते हैं जिन्होंने फास्टिंग नहीं करवाया होता, बिकॉज पूरे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में से ट्राइग्लिसराइड वो वाहिद चीज़ है जो फास्टिंग के साथ इफेक्ट होती है। और वही जब टोटल कोलेस्ट्रॉल में ऐड हो जाती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है क्योंकि उसमें वो ऐड हुआ हुआ है। वही पेशेंट अगर फास्टिंग में कराए तो उनमें से मल्टीपल वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें नॉर्मल आ जाता है। फास्टिंग हो, या पानी पीना या कुछ पानी पी सकते हैं, पानी का कोई इशू नहीं है, पानी पी सकते हैं। बट अगर फास्टिंग नहीं है तो आइसोलेटेड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया आ सकता है। अगर आइसोलेटेड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया एज फेमिलियल मौजूद है तो भी फर्स्ट लाइन इज स्टैटिन।
उसके बाद 500 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो आपने ऐड करना ये है। जो कंट्रोवर्सी आजकल चली हुई है स्टैटिन के बारे में, कुछ उस पर रोशनी डालें। मुझे आइडिया नहीं है, मेरे नज़दीक स्टैटिन की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के बारे इसमें में फाइब्रोमाइल्जिया वगैरह इस तरह इसमें हो कहते जाता हैं कि है उसका रोल नहीं है। Q10 जो देते हैं, Q10 वो दे देते हैं जो ये क्या है? सोशल मीडिया में कोएंजाइम Q10 का हाँ नहीं, सोशल मीडिया में कोलेस्ट्रॉल के बारे में चली हुई है कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है कि वो काज हो MI का। ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो होने का उसके चांसेस बहुत ये नहीं, आई डू नॉट एग्री टू दिस। सी मैं अगर इफ आई हैव टू, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड एंड बैड का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये लेटेस्ट बहुत ज़्यादा मीडिया ये था इसमें कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड मटेरियल, शुगर इज बैड मटेरियल, वही सब कुछ काज कर रही है। I'll tell you something. Till the time this is proven scientifically, I standing here will not endorse it. स्टैटिन की चीज़, स्टैटिन के फ़ायदे साइंटिफिकली प्रूवन हैं। सोशल मीडिया पे तो मैं कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमारे पास ये गाइडलाइन आ जाए कि आपकी स्टैटिन की ज़रूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट what happened was कि there was this discussion somewhere कि अगर पेशेंट कहता है मैंने एक गोली लेनी है तो उसे कहें कि तुम एंटी डायबिटिक भी नहीं ले सकते हो तो स्टैटिन ले लो। इस वक्त तो ये हालात हैं। तो अब अगर ये कोई टिकटॉक की कोई वीडियो बन रही है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट सोशल मीडिया लॉट, आई विल नॉट एंडोर्स इट एट ऑल। सेकेंडरी प्रिवेंशन 100%, प्राइमरी प्रिवेंशन नो बेनिफिट प्रूवन येट, अभी नहीं है, आ गया तो अल्लाह जानता है। अभी तक प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कि जनाब आपकी एज 70 है, आपकी 65 है, आप ले लें लोप्रिन, नुकसान तो नहीं है। नो 40-45 के बाद सबको कहते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्पिरिन, लोप्रिन, व्हाटएवर इज नॉट इंडिकेटेड। सेकेंडरी प्रिवेंशन इवन दैट जब वो ही नहीं है तो वो भी बिल्कुल डेफिनेटली नहीं है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए ना देना, जिसको पहले MI हुआ या अनस्टेबल एंजाइना हो, सिंपल एंजाइना हो, कुछ भी हुआ, उसको ना देना क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। उसमें भी हमने देखा है कि यूजुअली रिकमेंडेशन जो है कि 1 साल दे के तो उसमें से एक बंद कर दें, लेकिन कई पेशेंट कई साल दोनों ले रहे होते हैं। बिल्कुल क्लोपिडोग्रिल 12 महीनों के बाद 12 to 18 मंथ्स के बाद बंद होते हैं। बिल्कुल, बल्कि कुछ पेशेंट में वो जो है ये एक्सेप्ट भी लिखी होती है, कई चीज़ें लिखी होती कई चीज़ें लिखी होती हैं। एंटी वो ले रहे होते हैं। मेरा एक स्पेशलिटी इज़ अ स्पेशलिटी फॉर अ रीज़न। आपका पेशेंट कार्डियक पेशेंट, आप तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजें, एक ओपिनियन लेके आ जाए। क्लोपिडोग्रिल येस आफ्टर 12 मंथ्स शुड बी स्टॉप इन अ पेशेंट जो कि IHB का है एंड लोप्रिन कंटिन्यू, पूरी उम्र ले रहे हैं। कार्डियोलॉजिस्ट ने बंद नहीं की। इसमें या दूसरी बात ये होती है कि लिक्विड इंटेक इंक्रीज का भी रोल है। लिक्विड इंटेक इंक्रीज का ये रोल है कि वो पेशेंट अगर डिहाइड्रेशन में जाएगा तो वो कीटोएसिडोसिस का प्रोन हो जाएगा, एंड उससे बड़ा प्रोन हो जाएगा वो HHS का, जिसको हॉक भी कहा जाता था। जुवेनाइल डायबिटीज में होगी ना, अडल्ट में भी हो जाती है। हाँ जी डेफिनेटली। ये तो बड़ा अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। DKA के साथ पेशेंट वैसे प्रेजेंट करते हैं 60 ईयर्स भी, लेकिन जो डिहाइड्रेशन के साथ मैक्सिमम प्रेसिपिटेट होता है दैट इज़ HHS, जिसको हम पहले हॉन्ग कहा करते थे, अब उसका नाम HHS है, वो मैक्सिमम। एंड इंटरेस्टिंगली HHS के मैक्सिमम पेशेंट सिर्फ फ्लूइड के साथ ही बहुत बेहतर हो जाते हैं। इंसुलिन ड्रिप बड़ी पीछे रह जाती है, अब जो हम इंसुलिन पंप चलाते हैं पीछे रहते हैं। डिहाइड्रेशन का वहाँ रोल है। मैंने आपने प्रेशर पॉइंट्स का डिस्कशन की तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। प्रेशर पॉइंट का उसको साइंटिफिक डिटेल्स उसकी। देखिए प्रेशर पॉइंट एक नॉर्मल प्रेशर पॉइंट्स हैं, एक फुट स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो नॉर्मल प्रेशर पॉइंट्स के साथ होता है। उसमें आपको पता है कि आपके पास जो बिग टो है या आपकी हील है वो आपका प्रेशर ले रहा है, लेकिन जो मीडियल आर्च है वो आपका प्रेशर नहीं ले रही, वो फुट आर्किटेक्चर है। व्हाट हैपन्स इज कि जब आपको मोटर डेफिशिएंसी हो जाती है एंड सेंसरी डेफिशिएंसी हो रही है, आपको ये नहीं पता कि आपका पाँव बार बार कहाँ पड़ रहा है। अब होता ये है कि जहाँ पे आपका पाँव ज़्यादा पड़ा होता है उस जगह के ऊपर AV शंटिंग हो जाती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो वो रैंक L रिसेप्टर्स के साथ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे एक सूडो वीक बोन सी बनना शुरू हो जाती है। तो वही आर्च जो, और साथ साथ मसल लूज़ हो जाते हैं, वेस्टिंग होना शुरू, तो मसल प्रेशर भी नहीं रहता आर्च को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर लूज़ हो जाता है, सूडो बोन बन जाती है। तो वही फुट जो आर्च के साथ था वो रॉकर बॉटम बन जाता है।
जैसे ही आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली पहले अगर यहाँ प्रेशर था, एक चीज़ यूँ बन गई है तो ये प्रेशर ले लेगी, फुट पहले पड़ेगा ही यहाँ पे। ये एक नेचुरल वे ऑफ प्रेशर वाला नहीं है, ना इसके मसल्स ऐसे हैं, ना अल्लाह पाक ने उसके जैसे हील के ऊपर फैट पैड है उसको बचाने के लिए, इधर नहीं है। इधर एक कमज़ोर सी ऑस्टियोब्लास्टिक बोन बनी हुई है जो कि सारा प्रेशर ले रही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वहाँ पे प्रेशर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अल्सर बनेगा, अल्सर उसी बोन को इन्फेक्ट करेगा, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा एंड वो डायबिटिक फुट हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आपकी ड्यू टू सिंपैथेटिक जो कि आपकी नर्व्स हैं उनकी एवी शंटिंग, ब्लड सप्लाई शंटिंग। शंटिंग के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालो। एवी शंटिंग में क्या होता है कि आर्टीरियल ब्लड फ्लो और वीनस ब्लड फ्लो में डिफरेंस है। जब भी नियोवैस्कुलराइजेशन होती है तो नियोवैस्कुलराइजेशन इस तरह प्रेशर उसमें तो वो प्रॉपर जैसे आइज़ में हमारे पास शुरू हो जाती आर्टरी में ज़्यादा होगा, So, वेन में ज़्यादा है। तो जब नियोवैस्कुलराइजेशन होती है तो समटाइम्स क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड कहीं पे शंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? बिकॉज वो आपके पास प्रॉपर उनकी फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स नहीं होती है। जैसे ही वो बनते हैं, मोर ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलेंगे तो फिर उसमें साइनोसिस के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं वो इतनी नहीं होती, नहीं इस्कीमिया हो जाता है उस एरिया का, क्योंकि उसको वो ब्लड प्रॉपर मिल नहीं रहा। अब जब इस्कीमिया होगा और नियोवैस्कुलराइजेशन बनाएंगे और कीमो, वो क्योंकि वहाँ पे वो कहेगा जी और ब्लड दें, मुझे तो इस्कीमिया हो रहा है, लेकिन वो ब्लड ज़्यादा होता जाएगा, बोन वो लेके बढ़ती जाएगी, मसल और बाकी टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि वो उसको प्रोवाइड ही नहीं हो रहा, एवी शंटिंग हो रही है, इधर से ब्लड उधर जा रहा है। तो वो इतनी स्मॉल वेसल्स होती हैं कि वो फुल गैंग्रीन नहीं करती, लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ दैट टिश्यू वो कम हो जाती है और साइनोसिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मेरी तरफ से भी।